روزہ کب اور کس نے فرض کیا؟ روزہ اللہ تعالی نے فرض کیا اور یہ حکم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچایا گیا۔ حکم کا نزول تاریخ کا وہ لمحہ مدینہ کی رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ آسمان پر ستارے ایسے ٹھہرے ہوئے تھے جیسے کسی عظیم اعلان کے منتظر ہوں۔ ہواؤں میں ایک انجانی سی سنجیدگی تھی اور زمین اپنے سینے میں ایک فیصلہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے چل رہا تھا، مگر تقدیر کے اوراق میں ایک نیا باب لکھا جا چکا تھا۔ انسانیت ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ کی آزمائشیں پیچھے رہ گئی تھیں، ہجرت ہو چکی تھی اور مدینہ کی سرزمین پر ایمان کا ایک نیا معاشرہ تشکیل پا رہا تھا۔ یہاں عبادات کو ترتیب دی جا رہی تھی، قانون کو شکل دی جا رہی تھی اور روحوں کو نظم و ضبط سکھایا جا رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ سن 2 ہجری تھا، شعبان کا مہینہ چل رہا تھا۔ ایک وحی نازل ہوئی، ایک ایسا حکم جو صرف الفاظ نہ تھا بلکہ امت کے لیے ایک مکمل تربیت تھا۔ روزہ فرض کر دیا گیا۔ یہ حکم نازل ہوا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیات سنائیں تو فضا میں ایک سنجیدہ سی خاموشی چھا گئی۔ الفاظ واضح تھے مگر ان کی گہرائی بے حد تھی۔ اب رمضان کے روزے پوری امت مسلمہ پر فرض تھے۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا حکم نہ تھا، یہ نفس کو قابو کرنے کا اعلان تھا۔ یہ خواہشات کے خلاف ایک جنگ تھی۔ یہ انسان کو اس کی کمزوری کا احساس دلانے اور اسے روحانی بلندی تک لے جانے کا راستہ تھا۔ صحابہ کرام نے حکم سنا تو ان کے چہروں پر خوف نہیں بلکہ عزم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو حکم آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں یقیناً حکمت ہے۔ گرمی کی شدت ہو یا پیاس کی تڑپ، اطاعت ان کے دلوں میں سب سے اوپر تھی۔ مدینہ کی گلیوں میں خبر پھیل گئی کہ اب رمضان کا مہینہ عبادت کا مرکز ہوگا۔ سحری کی تیاری، افطار کی دعائیں، دن کی خاموش بھوک اور رات کی قیام، سب ایک نئے انداز میں زندگی کا حصہ بننے والے تھے۔ رمضان آیا تو پہلی بار امت نے اجتماعی طور پر روزہ رکھا۔ سورج طلوع ہوتا تو پیٹ خالی ہوتے مگر دل بھرے ہوتے۔ مغرب ہوتی تو اذان کی آواز کے ساتھ آنکھوں میں شکر کے آنسو آ جاتے۔ بھوک تکلیف تھی مگر اس کے پیچھے قرب الہی کی مٹھاس چھپی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا میں پہلا فرض روزہ عملی طور پر ادا کیا گیا۔ سن 2 ہجری میں مدینہ کی سرزمین پر امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ یہ حکم تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا، مگر اس حکم کے پیچھے ایک راز تھا۔ کیا انسان ہر سال اسی جذبے کے ساتھ اس فریضے کو نبھا پائے گا؟ کیا روزہ صرف جسمانی مشقت رہے گا یا روح کی بیداری بنے گا؟ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس آغاز تھا۔ رمضان کی آمد اور امت کی پہلی آزمائش۔ پہلا رمضان مدینہ میں آیا تو فضا میں ایک نیا جوش اور سکون دونوں چھا گئے۔ لوگ پہلی بار جانتے تھے کہ یہ مہینہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نہیں بلکہ دل اور روح کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ ہر گھر میں سحری کی تیاری، افطار کی خوشیاں اور رات کے قیام کی تیاری شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پہلی بار اجتماعی طور پر روزہ رکھا۔ سورج کی تپش میں بھی لوگ صبر سے کھڑے رہے۔ بچوں کے دل تجسس سے بھرے، بزرگ دل میں اللہ کی رضا کو محسوس کر رہے تھے اور جوان قوت و حوصلے کے ساتھ امتحان میں شریک تھے۔ ہر آنکھ میں عزم اور ہر دل میں جذبہ تھا۔ دن کے وقت بھوک اور پیاس انسانوں کو امتحان میں ڈالتی، مگر دل کے اندر ایک سکون کی لہر چلتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امت نے سمجھا کہ روزہ صرف جسمانی برداشت نہیں بلکہ یہ روحانی طاقت اور نفس کی تربیت بھی ہے۔ صبر اور تحمل کی آزمائش ہر لمحہ بڑھتی گئی۔ رات کے قیام میں ہر سجدے کے دوران آنکھوں سے آنسو بہتے، دل عاجزی کی کیفیت میں ڈوبا رہتا۔ قرآن کی تلاوت کے ہر لفظ کے ساتھ دل میں محبت اور خوف خدا پیدا ہوتا۔ پہلی بار امت نے محسوس کیا کہ عبادت صرف رسم نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کی پکار ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے روزہ مشکل تھا۔ پیاس کی شدت اور گرمی کی دھوپ میں صبر کرنا آسان نہ تھا۔
मगर ईमान की ताकत ने हर आजमाइश को सहना मुमकिन बना दिया। हर अफ्तार पर खाने से पहले शक्रिया के आंसू दिल की पाकीज़गी की अलामत बन गए। मदीना की गलियों में भी रूहानी रोशनी फैल गई। बाजारों की रौनकें कम हो गईं और लोग ज्यादातर अपने घरों में इबादत में मसरूफ रहने लगे। ये वो लम्हा था जब इम्त ने पहली बार समझा कि रोज़ा इज्तिमाई तरबियत भी है और हर शख्स अपनी जदोजहद के जरिए अल्लाह के करीब जा सकता है। पहला रमज़ान इंसानों के लिए सब्र, ज़ब्त और कुर्बानी की बुनियाद बन गया। हर भूख, हर प्यास और हर छोटे इम्तिहान ने दिलों को मजबूत किया। वो जान गए कि ये रोज़ा सिर्फ जिस्मानी सहूलत की कमी नहीं, बल्कि दिल और रूह की पाकीज़गी का जरिया है। सहाबा कराम के दिलों में ये भी ख्याल आया कि उस इबादत के साथ अखलाकी तरबियत भी ज़रूरी है। ज़बान, निगाहें और अमल भी रोज़े की रूह के हिस्सा हैं। यूं रोज़ा सिर्फ खाने पीने का नहीं, बल्कि हर लम्हा किरदार की भी आजमाइश बन गया। हर दिन ख़त्म होने पर इफ्तार के वक्त खुशी और शुक्र की कैफियत दिल में उतरती। अम्मत ने पहली बार महसूस किया कि ये रोज़ा एक नामत है, एक मौका है जो इंसान को रब के करीब ले जाता है। ये लम्हा वो था जब पहली नस्ल ने रोज़े की असल रूह को समझा। ये सेक्शन हमें बताता है कि पहला रमज़ान और फ़र्ज़ रोज़ा न सिर्फ जिस्मानी मशक्क़त था, बल्कि एक मुकम्मल रूहानी और अखलाकी तरबियत का आगाज़ था। अगला मरहला हमें दिखाएगा कि कैसे अम्मत ने इस फ़र्ज़ की गहराइयों को समझा और हर साल इसके इम्तिहान में कैसे बढ़ती गई। इम्तिहान की शिद्दत और रूहानी बुलंदी। पहला रमज़ान गुजरने के बाद इम्मत ने महसूस किया कि रोज़ा सिर्फ चंद दिनों की इबादत नहीं, बल्कि हर लम्हा सब्र, तहम्मुल और कुर्बानी की एक मुश्क है। दिन की गर्मी और भूख दिल की ताकत और ईमान की आजमाइश बन गए। हर इंसान ने अपनी हदें पहचानी और अपनी कमजोरियों से लड़ना सीखा। सहाबा कराम ने देखा कि रोज़ा सिर्फ जिस्मानी रोके नहीं रखता, बल्कि दिल की ख्वाहिशात पर भी काबू पाने की तरबियत देता है। हर सहरी और इफ्तार के वक्त दिल में शुक्र और आजिज़ी पैदा हुई। अम्मत ने समझा कि रोज़ा इबादत का एक मुकम्मल निज़ाम है, जो अखलाक, किरदार और ईमान को एक साथ परवान चढ़ाता है। कुछ अफराद के लिए ये आजमाइश आसान न थी। गर्मी, प्यास और थिकन दिलों में इत्तराब पैदा करती, मगर ईमान की रोशनी ने उनके हौसले को बुलंद रखा। हर अफ्तार के वक्त शक्र और दुआ दिल को सुकून देती और रूह को ताजगी पहुंचाती। रात के क़याम में लोग ज्यादा वक्त अल्लाह की याद में गुजारते। कुरान की तलावत, दुआ और सजदे दिलों को नर्म और आजिज करते। पहली बार इम्त ने महसूस किया कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी और रब के क़र्ब का जरिया भी है। पहला रमज़ान अखलाकी तरबियत का भी दर्स था। ज़बान की बराई, निगाहों की नापाकी और ऐमाल की बिदानवानी से बचना भी रोज़ा की रूह का हिस्सा बना। सहाबा कराम ने जाना कि रोज़ा का मकसद सिर्फ जिस्मानी रोक नहीं, बल्कि हर अमल में परहेज़गारी लाना है। उम्मत ने एक दूसरे की मदद से सब्र और कुर्बानी की अहमियत समझी। एक दूसरे को हौसला देते, बच्चों को रोज़े की अहमियत बताते और बुजुर्गों के तजुर्बात से सीखते। यूं रोज़ा मुआशरती और रूहानी तरबियत का जरिया भी बन गया। दिन के इख्तिताम पर इफ्तार की खुशी सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि शिक्र और आजिज़ी की कैफियत थी। अम्मत ने पहली बार महसूस किया कि रोज़ा दिलों को निर्म करता है, ख्वाहिशात को काबू में लाता है और रब के करीब ले जाता है। पहला रमज़ान एक ऐसी बुनियाद बना गया जिस पर आने वाली नस्लें सब्र, तकव्वी और कुर्बानी के उसूलों को सीखेंगी। हर साल रमज़ान की आमद लोगों के दिलों में पहली नस्ल के जज्बे को दोबारा जिंदा करती। यहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हर रोज़ा इंसान की रूहानी ताकत को बढ़ाता, इखलाकी तरबियत देता और ईमान की बुनियाद मजबूत करता। अम्मत ने समझा कि रोज़ा सिर्फ जिस्मानी मशक्क़त नहीं, बल्कि दिल और रूह की परवरिश भी है। इस सेक्शन का इख्तिताम हमें यह सिखाता है कि फ़र्ज़ रोज़ा न सिर्फ एक इबादत है, बल्कि सब्र, ज़ब्त, इखलाकी तरबियत और रूहानी क़रबत का मुकम्मल निज़ाम है। अगला सेक्शन हमें दिखाएगा कि कैसे अम्मत ने इस फरीज़े को जारी रखा और उसकी हकीकत को जिंदा रखा। कुर्बानी की रूह और रोज़े की हकीकी कामयाबी। वक्त गुजरता रहा और रमज़ान हर साल आता गया,
मगर हर दिल में रोजे की असल रूह कायम न रह सकी। कुछ लोग सिर्फ जिस्मानी रोके रखते, मगर दिलों में गुरूर, ख्वाहिशात और नफरत छिपी रहती। ये वो लम्हा था जब अम्त के लिए इम्तिहान शुरू हुआ। क्या रोजा सिर्फ रस्म बनकर रह जाएगा या रूह की बीदारी का जरिया बनेगा? मदीना की गलियों में रात के क़याम की सदा सुनाई देती और हर घर में सहरी और अफ्तार की तैयारी जारी थी, मगर अंदर दिल की हालत मुख्तलिफ थी। कुछ लोग रोजा को अल्लाह के कुर्ब का जरिया बना रहे थे और कुछ महज समाजी रस्म समझकर अमल कर रहे थे। रोजा सिर्फ भूख और प्यास से रोकना नहीं, बल्कि जबान, निगाह, दिल और अमल को भी काबू में रखना था। जो शख्स गैबत, झूठ या जुल्म से बचता, वो रोजे की रूह को पा लेता। यही असल सबक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले रोजे से शुरू हुआ और इम्ति मुहम्मदिया तक पहुंचा। तन्हाई में रोजा रखने वाले अफराद ने सबसे ज्यादा कर्बत महसूस की। वो लोग जो बाजारों की रौनक से दूर, खामोश घरों में अल्लाह के हुजूर आजिजी अख्तियार करते, वो हकीकी फतह हासिल करते। उनके आंसू, सजदे और दिल की आजिजी सब एक इबादत बन गई। कुछ लोग बीमारी, सफर या मुश्किलात में रोजा रखते और हर लम्हा सब्र व शुक्र के साथ गुजारते। ये लम्हे इंसान के दिल और रूह के लिए आजमाइश और तरबियत दोनों थे। हर मुश्किल के बाद खुशी और सुकून का एहसास ज्यादा होता। इफ्तारों के वक्त शक्र अदा करना और अल्लाह की नामतों को याद करना रोजे की रूह को जिंदा रखता। ये लम्हा याद दिलाता कि रोजा सिर्फ जिस्मानी बर्दाश्त नहीं, बल्कि दिल की तरबियत और रब से क़रबत का जरिया है। रोजे ने उम्मत को इज्तिमाई और अखलाकी तरबियत दी। हर शख्स ने अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखा, बच्चों और नौजवानों को सब्र सिखाया और बुजुर्गों से रहनुमाई हासिल की। यूं रमजान एक मुकम्मल निज़ाम बन गया जो जिस्म, दिल और रूह सबकी तरबियत करता है। वक्त के साथ दुनिया बदलती गई, मगर रोजे की असल रूह हमेशा एक जैसी रही। वो जो दिल में ईमान और आजिजी रखते, रोजे से कुव्वत हासिल करते, और वो जो सिर्फ रस्म अदा करते, रोजा उनके लिए बोझ बन जाता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रोजा सिर्फ एक महीने का फर्ज नहीं, बल्कि एक तर्ज जिंदगी है। जो शख्स रोजे की रूह को समझे, सब्र, शुक्र और कुर्बानी में मशगूल हो, वो हकीकी कामयाबी हासिल करता है। दुनिया का पहला फर्ज रोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा से शुरू हुआ और रमजान के रोजे इम्ति मुहम्मदिया पर फर्ज हुए। आज भी हर साल हमें ये इम्तिहान दिया जाता है कि क्या हम सिर्फ रस्म अदा करेंगे या दिल और रूह के साथ इस फरीजे को निभाएंगे। यही वो सबक है जो तारीख की हर नस्ल के लिए जिंदा रहता है। खलासा, दुनिया का पहला रोजा और उसकी रूह। दुनिया का पहला रोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा से शुरू हुआ, जब उन्होंने अपनी गलती के बाद अपने रब के हुजूर सब्र और आजिजी का मजाहिरा किया। ये रोजा सिर्फ जिस्मानी भूख और प्यास नहीं, बल्कि रूहानी पाकीज़गी, दिल की तरबियत और नफ्स पर काबू पाने का सबक था। आगे चलकर रमजान के रोजे सन 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में इम्ति मुहम्मदिया पर फर्ज किए गए। ये फर्ज रोजा न सिर्फ जिस्मानी इबादत था, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम था जिसमें अखलाकी तरबियत, दिल की पाकीज़गी और इज्तिमाई इबादत शामिल थी। पहले रमजान में अम्मत ने पहली बार इज्तिमाई तौर पर रोजा रखा। दिन के वक्त भूख और प्यास सब्र की आजमाइश बनी और रात के क़याम ने दिल व रूह को ताजगी और क़िर्ब इलाही का एहसास दिया। हर सहरी और अफ्तार शक्र और आजिजी की तालीम देते। रोजे की असल रूह सिर्फ खाने पीने से रोकना नहीं, बल्कि जबान, निगाह, दिल और एमाल पर काबू पाना है। जो शख्स सिर्फ रस्म के तौर पर रोजा रखता, उसके लिए ये बोझ था, और जो ऐमान व आजिजी के साथ रखता, वो हकीकी कुर्बत और सुकून हासिल करता। पहला रमजान और फर्ज रोजा इम्त के लिए सब्र, तहम्मुल, कुर्बानी और रूहानी बुलंदी का जरिया बन गए। हर साल रमजान हमें ये याद दिलाता है कि रोजा सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि दिल और रूह की तरबियत है, और कामयाबी इन लोगों के हिस्से में है जो उस रूह को समझकर अदा करते हैं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलो, जहां हर कहानी स्टोरीज दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचते हैं। शुक्रिया।